नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। चलिए अब जाते हैं खबरों की ओर। हिंदू संप्रदाय का सबसे पावन माह सावन के तीसरे सोमवार पर शिव भक्तों का तांता शिव मंदिर में उमड़ा। दामोदर नदी से जल लेकर भक्त जन रानी सड़कें जोड़ा शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव भक्तों का तांता शिव मंदिर में उमड़ पड़ा। दामोदर नदी से जल लेकर भक्त जन रानी सड़कें जोड़ा शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। सावन के सोमवार का खासा महत्व है। सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। भगवान शिव को सावन के महीने का प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वामपंथियों की तरफ से लगातार केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ पथसभा के साथ साथ रैलियां निकाली जा रही है। वहीं सोमवार रानीगंज के सियासुल मोड़ और तार बंगला अरुण टॉकीज के पास वामपंथियों की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर पथसभा की गई। वामपंथियों की तरफ से लगातार केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ पथसभा के साथ साथ रैलियां निकाली जा रही है। सोमवार रानीगंज के सियासुल मोड़ और तार बंगला अरुण टॉकीज के पास वामपंथियों की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर पथसभा की गई। उनकी मांग में श्रम विरोधी श्रम कोड, जन विरोधी कृषि कानून और विद्युत बिल को रद्द करने की मांग की गई थी। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सहित खाद्य तेलों में हो रही पर्वतरोग की कमी करने की मांग शामिल थी। बिना मूल्य वैक्सीन लगाने की मांग वामपंथियों ने इस दौरान की। इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को छोड़कर सभी लोगों को 1500 रुपए मासिक भत्ता देना होगा। हर एक महीने लोगों को 10 केजी खाद्य सामग्री देनी होगी ताकि लोगों को राहत मिल सके। मजदूरों की न्यूनतम वेतन, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन देने की भी मांग इस दौरान की गई। इस कार्यक्रम में वामपंथी नेता और रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता, हेमंत प्रभाकर, संजय प्रमाणिक, सुप्रियो रॉय, किशोर घटक, देवेंद्र मुखर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। কর্পোরেট যা বলছে তাই হবে। কৃষি ক্ষেত্রেই হোক, শিল্প ক্ষেত্রে হোক, শিল্প হচ্ছে না। কোথায় শিল্প হচ্ছে? কোথায় শিল্প লাভ? টাকা ফুটছে ফটকাবাড়িতে ঘোরাফেরা করছে। কোথায় আসছে দেখান, গোটা পৃথিবীতে দেখান। বড় বড় কোম্পানি তাদের কারখানা পৌঁছিয়ে তারা উৎপাদন বাড়িয়েছে, রোজগার বাড়িয়েছে। কোথাও না, কোথাও কারখানা হচ্ছে, কোথাও শিল্প হচ্ছে না, কিন্তু রোজগার বাড়া। আমাদের আম্বানি পৃথিবীর 10 জনের ভেতর একজন হয়ে গেল। কি আর তার ব্যবসা? কত তার ব্যবসা আছে? 10 জনের ভেতর একজন হয়ে গেল, তিনি দেশ চালাচ্ছেন। আর এই সরকার, এই মোদী সরকার, এই হচ্ছে আমাদের আরএসএস সরকার, এরা হচ্ছে এই সরকার হচ্ছে এদের কথা শুনে চলছে। কর্পোরেট সেক্টররা যা বলছে তাই করছে। এই শুনতে হবে 1 ঘন্টার উপর আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। আমরা প্রতিনিয়ত একটা লড়াই, কখনো গুন্ডাবৃত্তির জন্য আমরা চিৎকার করছি, মানুষকে সংগঠিত করছি। কখনো কলকারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। কখনো বেকার ছেলেদের চাকরির জন্য আমরা হচ্ছে লড়াই করছি। কখনো আমরা সরকারকে মনে করে দিতে চাইছি যে তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এইরকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যে প্রত্যেকটা মানুষকে তার বাড়িতে গিয়ে ভ্যাকসিন দেওয়া। যে তোমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছ
তাতে সেই থেকে সমস্ত মানুষের ভ্যাকসিন পেতে 2 থেকে 2.5 বছর এখনো লাগে। ফলে যে থার্ড ওয়েভ আসে করার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে আমাদের বিমা সংস্থা একটা সময় প্রাইভেট মালিকানাধীন ছিল, সেই ইন্স্যুরেন্স সংস্থাকে আবার হচ্ছে ব্যক্তি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বিল পেশ করা হয়ে গেছে। আর হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থা কতদিন থাকবে আমরা জানি না। একটার পরে একটা ব্যাংকে বলে দেওয়া হচ্ছে, যেখান থেকে নীরজ মোদীরা, যেখান থেকে মেহুল চোস্তিরা, বিজয় মালিয়ারা হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে চলে গেছে, যাদের কোনো ফেরানোর উদ্যোগ নেই। সেই সমস্ত ব্যাংকগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে এখন বলা হচ্ছে, যারে বাপু তোমার ব্যাংকটা তো লোকসানে চলছে, তাহলে পাশের একটা ব্যাংকের সঙ্গে তোমাকে জুড়ে দেওয়া হলো। কতদিন বাঁচবে সেই ব্যাংকটা? আজকে ব্যাংকেও বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তাদের কাছে যারা ব্যাংকের টাকা লুটে পুটে নিয়ে চলে গেছে, যারা ব্যাংকের টাকা লুটে নিয়ে বিদেশে চলে গেছে, যাদের ফেরানোর কোনো উদ্যোগ নেই। সেই সমস্ত পুঁজিপতিদের, শিল্পপতিদের হাতে ব্যাংকগুলোকে তুলে দেওয়ার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर के वॉको इंडिया सीनियर एंड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में चयन हुआ है। 2 दिनों पश्चात तीनों खिलाड़ी गोवा के लिए रवाना होंगे। रानीगंज के 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर के वॉको इंडिया सीनियर एंड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में चयन हुआ है। 2 दिनों पश्चात तीनों खिलाड़ी गोवा के लिए रवाना होंगे। तीनों खिलाड़ियों को सोमवार अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रानीगंज शाखा की तरफ से स्वागत किया गया एवं इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन की रकम की मदद मारवाड़ी महिला सम्मेलन के पदाधिकारियों ने किया। संस्था की अध्यक्ष पीटी लोहिया ने 15,000 रुपए नगद की राशि खिलाड़ियों को सौंपी है एवं कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में रानीगंज शहर के तीनों खिलाड़ी अपना परचम लहराएंगे। उनके लिए शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में वे भारत का नाम रोशन करेंगे। संस्था के सलाहकार मंजू संथोलिया ने कहा कि रानीगंज के तीनों खिलाड़ी काफी गरीब घर से हैं, परंतु उनमें प्रतिभा है एवं आगे बढ़ने की ललक है। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों से कहा कि आप लोग अपना 100% मेहनत लगाकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले। आप लोगों की मदद के लिए हम लोग हैं। प्रतियोगिता में अपना परचम लहराए। करण राम, साहिल आलम एवं चांद रुईदास नेशनल किक बॉक्सिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गोवा जा रहे हैं। 26 से 29 अगस्त तक यह प्रतियोगिता चलेगी। इस अवसर पर मारवाड़ी महिला सम्मेलन किंग सरोज अग्रवाल, ऋचा गौरी सरिया, आशा टोडी सहित कई महिलाओं ने तीनों खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया एवं उनका मनोबल बढ़ाया। मेरा सादर अभिनंदन। मैं श्री चिड़िया मारवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष 3 खिलाड़ी हैं जो कि रानीगंज के हैं और इन्हें नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट किया गया है। वैको इंडिया सीनियर एंड मास्टर्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के लिए, जो कि मापुसा गोवा में 26 से 29 अगस्त 2021 में होने जा रहा है। उन्होंने अपनी कोच की मदद से और कठिन परिश्रम से आज इस मुकाम में पहुंचे हैं कि वह रानीगंज का नाम नेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर खिलाड़ी के पीछे एक बैकअप सिस्टम होता है, क्योंकि उनके खेल के लिए हर संभव मदद हो सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज हमारी महिला समिति रानीगंज आगे आई है। कोच ने हमसे बात करी और रानीगंज मारवाड़ी महिला समिति इन्हें उनके सपने पूरे करने में हेल्प करनी चाहिए। संस्था की तरफ से इन्हें मदद की जा रही है ताकि ये कॉम्पिटिशन में भाग ले सकें और हमारी तरफ से और पूरे रानीगंज की तरफ से आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अवश्य विजय होंगे और हमारे शहर और हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मंसूर आलम है। रानीगंज मिक्स मसाला फिटनेस अकेडमी से कोच हूँ मैं और अपकमिंग गोवा में सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें हमारे रानीगंज से 3 बच्चे सेलेक्ट हैं। तीनों बच्चे का यहीं पर मौजूद है। ये साहिल आलम,
ये किक लाइट खेल रहा है, और ये चांद रविदास ये फुल कॉन्टैक्ट खेल रहे हैं, और ये करण राम ये K1 खेल रहे हैं। K1 किक बॉक्सिंग का सबसे टफ मैच होता है, उसके बाद फुल कॉन्टैक्ट फिर किक लाइट। और जो गेम खेलने जाने में जो परेशानी थी हम लोग को, जो हमारे बच्चों का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो मारवाड़ी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का रानीगंज का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि हम लोग को यहाँ से हेल्प किया गया, और बच्चों को जाने में जैसे कि आराम हो, जाकर खेल कर मेडल करके आए रानीगंज के लिए। स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग अपना अपना वेट कैटेगरी में, नेशनल लेवल में। आप लोग भी दुआ कीजिए, यहाँ से मेडल करके आए ये लोग। ओलंपिक की लहर से भाव विभोर है। इस बार हमारे ओलंपिक में जाके भारतीय खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। उसी लहर में जब ये तीनों हमारे रानीगंज के बच्चे, जब मैंने सुना कि ये लोग नेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं अपना सारा काम छोड़ के इनसे मिलने आई कि इनको अपनी गुड विशेस दे सकूं, ताकि ये जीत के वापस रानीगंज आए और रानीगंज का नाम रोशन करें। मेरी सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम बच्चों के साथ है। हम लोग से जितना बन पड़ेगा, मारवाड़ी महिला समिति और हम सब मिलकर तुम लोग को हेल्प करेंगे। बस तुम लोग दम जोश में आके अपना 100% दे के और जीत के आओ, यही मेरा आशीर्वाद है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज के व्यवसायियों की सुविधा के लिए आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में सोमवार से 5 दिवसीय ट्रेड लाइसेंस बनवाने और रिन्यू करवाने के लिए कैंप लगाए गए हैं। रानीगंज बोरो 2 के अधिकारियों की तरफ से यह ट्रेड लाइसेंस रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बनाए जा रहे हैं। रानीगंज के व्यवसायियों की सुविधा के लिए आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में सोमवार से 5 दिवसीय ट्रेड लाइसेंस बनवाने और रिन्यू करवाने के लिए कैंप लगाए गए हैं। रानीगंज बोरो 2 के अधिकारियों की तरफ से यह ट्रेड लाइसेंस रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बनाए जा रहे हैं। शिविर का उद्घाटन में रानीगंज के बोरो प्रशासक पूर्ण शशि राय मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, सचिव अरुण भारतीय सहित कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। कैंप के दौरान अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया ने बताया कि व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस काफी महत्वपूर्ण होता है। ट्रेड लाइसेंस को लेकर चेंबर द्वारा अक्सर ही कैंप लगाए जाते हैं ताकि व्यापारियों को नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े। व्यापारी अपनी पुराने ट्रेड लाइसेंस को लेकर आए, उसे रिन्यू करा कर ले जाए। वहीं नए ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यापारी के आधार कार्ड, बंगला में लिखे साइन बोर्ड की फोटो, दुकान मालिक की जमीन के परचेज, जमीन की दलील, टैक्स जमा के रसीद। वहीं अगर भाड़े का दुकान है तो मकान मालिक द्वारा भाड़ेदार को दिया जाने वाला भाड़ा का रसीद होना अनिवार्य है। इन कागजातों के होने से आवेदक व्यापारी तत्काल अपना ट्रेड लाइसेंस ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन के इस कैंप में 50 से अधिक व्यवसायियों ने ऑन स्पॉट अपने ट्रेड लाइसेंस बनवाए। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोरो 2 एडमिनिस्ट्रेटर माननीय श्री पूर्ण शशि बाबू আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। আপনি জানেন আজ সকাল 10:30টার দিকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রচেষ্টায় রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স একটা ট্রেড লাইসেন্স ক্যাম্প লাগানো হয়েছে। এই ক্যাম্পটা আজকে 9 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, সেটা 14 তারিখ অবধি চলবে। सभी चैम्बर के मेंबर्स एवं स्पेशली हमारे म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से ये कैंप सक्सेसफुली लगा है। मैं सबसे आगे हमारे परिचालना का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कहा है कि एकदम सिंप्लीफाइड वे में ट्रेड लाइसेंस बनेगा। जिनका ओल्ड लाइसेंस है उनको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। पुराना ट्रेड लाइसेंस का जेरोक्स, एक उनका यदि रेंटेड है तो रेंट रिसीप्ट, एक आधार कार्ड का जेरोक्स और एक बेंगोली साइन कार्ड का फोटो। ये यदि डॉक्यूमेंट्स एक आदमी लेके आता है, उनका 3 साल के लिए रिन्यू कर देंगे। और न्यू लाइसेंस की जो प्रतिक्रिया है वो भी बहुत सरल कर दी गई है। इसके लिए मैं हमारे अमरनाथ दा का, हमारे आरओ साहब का, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। आशा करते हैं इसी तरह रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे मेंबर्स, हमारे नॉन मेंबर्स की सेवा करती रहे। धन्यवाद। एएमसी म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री नितिन सिंघानिया जी के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने बुलाया था, इस इलाके की सारी चेंबर को बुलाया था। उन्होंने हमारी सारी समस्याएं सुनी, बहुत ध्यान से सुनी। बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर हैं वो, और उन्होंने कहा कि आपको ट्रेड लाइसेंस में क्या समस्या आ रही है। तो हम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने तुरंत आरओ साहब को कहा कि सभी चेंबर में एक कैंप 7 दिन 6 दिन का लगाया जाए,
आसनसोल में, न्यामतपुर में, जामुरिया में, रानीगंज में, भरतपुर में, न्यामतपुर में सब जगह आज से कैंप लगाया जा रहा है एवं आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही कैंप लगा रही है। हम लोग यहाँ वेन्यू प्रोवाइड किए हैं। हम लोग हमारे रानीगंज चेंबर की कमेटी के मेंबर लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। एएमसी के जो ऑफिसर्स स्टाफ यहाँ आए हुए हैं और मैं सभी रानीगंज के जनता से अपील करता हूँ कि यहाँ आए और अपना ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करवाएं या उनको जिसको नया बनवाना है नया बनवाएं, उनको किसी रंग की तकलीफ नहीं आएगी। धन्यवाद। ট্রেড লাইসেন্স ক্যাম্প আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন এখানে লাগাইছে। এটা আমাদের অনেক দিন ধরে ডিমান্ড ছিল। আমাদের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় বাজোরিয়া আর ওনার কো চেয়ারম্যান দীপক জালান আর রাজেশ বেলডিওয়াল আর বিনীত খেটেলার যারা কৃষ্ণাদি 2-3 বার দুর্গাপুর আসানসোল আমাদের কমিশনার সঙ্গে দেখা করেছেন, আরও সাহেব সঙ্গে দেখা করেছেন। তো ওনার আমাদের কমিশনার সাহেবের সেই মানে প্রচেষ্টাতে এই ক্যাম্পটা আমরা আজকে এখানে লাগাতে পেরেছি। এটা সম্পূর্ণভাবে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ক্যাম্প লাগাচ্ছে। আমরা শুধু এখানে ভেন্যু প্রোভাইড করেছি আর আমরা এখানে মেম্বারদের সহযোগ করার জন্য নিজের রানিংয়ের চেম্বার বোর্ড পুরো হেল্প করছে। এই ক্যাম্পটা 14 তারিখ পর্যন্ত চলবে। এখানে মেম্বার নন মেম্বার সবাইদের লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, নতুন ট্রেড লাইসেন্স আর ওল্ড ট্রেড লাইসেন্স রিনিউ করা হবে। আমরা সবাই মেম্বার কাছে অ্যাপিল করছি যাদের ট্রেড লাইসেন্স ডিউ আছে ওরা এখানে এই সুযোগের লাভ অর্জন করুন ও ট্রেড লাইসেন্স বানিয়ে নিয়ে যান। हमारे আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় যতগুলি আমাদের বড়ো আছে 10টা বড়ো, সেই 10টা বড়ো যারা চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের সাথে বসে আসানসোল পৌর নিগম আমরা ঠিক করি যে ট্রেড লাইসেন্স করাবার জন্য আসানসোল পৌর নিগমে না এসে আমরা আপনাদের চেম্বারের দপ্তরে ক্যাম্পটা করে দেবো। আমরা পুরনো যাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে তাদের রিনিউ করছি এবং যারা নতুন করে করছে তাদের রিনিউ করছি। তো আমরা গত বছর করেছিলাম ট্রেড লাইসেন্স রিনিউ, এর আগেও করেছি। তো আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় চেম্বারগুলির কাছ থেকে আমরা খুব সহযোগিতা পেয়েছি। আজ থেকে শুরু করেছি আমরা 14 তারিখ পর্যন্ত, যাতে ব্যবসায়ীদের কোনো অসুবিধা না হয়, তারা ব্যবসাও করতে পারে আর এই চেম্বার কমার্সে এসে তারা লাইসেন্সটাও করিয়ে নিতে পারে। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, উনি চান বাংলায় শিল্প যারা করেন, বাংলায় যারা ব্যবসা করেন তারা যেন আসানসোল পৌর নিগম সহ সারা বাংলায় যত পৌর দপ্তর আছে সেখানে যেন তারা সুযোগ সুবিধা পায়। তাই আমরা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় আমরা এই ধরনের ক্যাম্প করছি যাতে সহজে তারা এই লাইসেন্সটি করিয়ে নিতে। তারা পরিচালনা করছে, তারা বসার জায়গা দিচ্ছে, আমাদের অফিসারদের সাথে সহযোগিতা করছে এবং সর্বোপরি চেম্বারের লোকেরা যে কাজটা করছে যেটার জন্য আমরা আসানসোল পৌর নিগম গর্ব অনুভব করি। তারা ব্যবসায়ীদের ডেকে নিয়ে আসছে, তারা ব্যবসায়ীদেরকে ডেকে নিয়ে আসছে চলুন আপনার লাইসেন্সটা করিয়ে নেন। সেই জন্য তো আমরা বলছি যে আমাদের এই চেম্বার কমার্সকে, এই যে রানিংয়ে যে চেম্বার কমার্স রয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা আসানসোল পৌর নিগমকে যেমন সহযোগিতা করছেন, যেন আবার ধন্যবাদ জানাই রানিংয়ে চেম্বার কমার্সের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি এবং অল মেম্বার সবাই। ट्रेड लाइसेंस का विराट रूप में कैंप लगाया गया है, जो कि आज 11 बजे से चालू हो गया है और ये 14 तारीख तक ये कैंप चलेगा। इसमें रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहभागी के रूप में काम कर रही है और हम लोग ने सारे मेंबरों को, सारे नन मेंबरों को रानीगंज को मैसेज के द्वारा और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा यह खबर भिजवा दी है। यहाँ पर कैंप लगा है जिसमें नए ट्रेड लाइसेंस और पुराने ट्रेड लाइसेंस रिन्यू होंगे। जिनको भी यह सुविधा का लाभ उठाना है वो रानीगंज चैम्बर के परिसर में आए और यहाँ पर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे विभागीय अधिकारी बैठे हुए हैं और वो तुरंत आपका ट्रेड लाइसेंस डॉक्यूमेंट सही होने पर बना के दे देंगे हाउस का 1 घंटा में। और हम लोगों को उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में लोग उनका ट्रेड लाइसेंस बाकी है वो आकर यहाँ पर इस सुविधा का लाभ लेंगे। 14 तारीख तक चलेगा, जैसा कि आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंस्ट्रक्शन है। ये 9 तारीख से 14 तारीख तक डेली ये कैंप चलेगा और ये सुबह से लेकर शाम तक नए ट्रेड लाइसेंस के लिए अलग गाइडलाइन है। पुराने ट्रेड लाइसेंस के लिए रिन्यूअल के लिए आपको पुराना ट्रेड लाइसेंस लाना पड़ेगा, आपका बंगला साइन बोर्ड लाना पड़ेगा और यदि रेंटेड है तो एनओसी लाना पड़ेगा और एक आधार कार्ड का जरूरत है और ट्रेड लाइसेंस बनता है सबको इस सुविधा का लाभ।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज स्थित 34 नंबर वार्ड इलाके के CR100 सुकांतोपल्ली की रहने वाली 27 वर्षीय स्वर्णाली दास का शव उसके कमरे में लटकती अवस्था में पाया गया। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज स्थित 34 नंबर वार्ड इलाके के CR100 सुकांतोपल्ली की रहने वाली 27 वर्षीय स्वर्णाली दास का शव उसके कमरे में लटकती अवस्था में पाई गई। घटना के संबंध में स्वर्णाली के 7 साल के बेटे संगीत ने बताया कि कल शाम को उसकी मां स्वर्णाली के साथ उनकी सास, ननद सहित ससुराल के अन्य लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद स्वर्णाली संगीत को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। कपड़े बदलने के बहाने उन्होंने संगीत को बाथरूम भेजकर बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर कमरे में फांसी लगा ली। वहीं रूपनारायणपुर देंदुआ नागरा जोड़िया के रहने वाले मृतिका के भाई चंदन दास ने कहा कि 9 साल पहले उनकी बहन की शादी रानीगंज के रहने वाले शुभंकर दास के साथ हुई थी। तभी से उन पर अत्याचार किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों से तंग आकर कल उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। चंदन ने कहा कि उनकी बिना बताए उनकी बहन को इलाज के लिए पहले रानीगंज के आनंद लोक ले जाया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उनको आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि उनकी बहन को साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में कर जांच आरंभ कर दी है। তোর মাকে ইয়ার আগে প্রচন্ড জ্বালাই দিল ইয়ারা কে জ্বালাই তো কে করতে ঝগড়া তোর সামনে কোন দিন তোর মাকে মারতে গেছে দুজনকে বকিনি আমি মাকে বকেছি দিদাকে বকেছি লাগিলে ঝগড়া সব চুপ দাও বলে বলে তোকে খাওয়ার নিয়ে ডেলি খোটা দিত নাকি কে বলে সেটা দাদু একটা কলা খেলেই যাচ্ছিস হ্যাঁ দুটো কলা খাওয়াইতে দিতে হবে দুটো কি করতে দুটো দুটো এনে যায় জল ঢোকাই ভক্ত থেকে নিয়ে যায় মানে বড় বাইট ঢোকো প্রত্যেকদিন লেখা আছে জল নিয়ে জল মিশাই আচ্ছা চলাই নে চাই পুয়া দুধ আপনি জল মিশান সেটা ওরা কি করে জানলো তাহলে বাবা বাটগুলো ধুতে দিয়ে নোংরা করে থাকে তখন বলছ না এত দুধ নিয়ে যায় বাবা তো দুধ নিয়ে যায় এত কি করে হইছে 1 কিলো করে ঘি হয় পার মাস হবে বলুন না বল দাঁড়া আমার মায়ের সাথে ঝগড়া করছিল কে ঝগড়া করেছিল আর নাম্মি আর পিপি আর দাদু ঝগড়া করছিল ঝগড়া করে বড় মা রেখে কি উপরে গেল উপরে গিয়ে পরে একটা শাড়ি একটা ওড়না বার করলো ওড়নাটা বার করে মা বললো যে আমি শাড়িটা আর ওড়নাটা পরবো যাচ্ছি বাথরুমে ঢুক আর দিয়ে আমি বাথরুমে ঢুকলাম যে বাথরুমে ঢুকে পরে মা কি করলো ওইখানেরও দরজাটা বন্ধ করে দিল মানে যে যদি ঘরে ঢুকছে ওইখানেরও দরজা বন্ধ করে দিল আর দিয়ে পরে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিল আর দিয়ে পরে চিঁচাতে লাগলো আর চেয়ারগুলোকে ছুটতে লাগলো আর এই কানের মানুষ সব কিছু খুলে দিয়ে পরে ওই যে ইয়াটা লি পরে ওড়নাটা লি ফ্যানের টাঙ্গালো ফ্যানের টাঙ্গাই তুই দেখতে পেয়েছিস এগুলা আমি দেখতে পাই না তাহলে এগুলো বাথরুমের ভিতরে ছিল দিয়ে সবাই এসে খুললো খুলে পরে কপাল ভেঙেছিল কপাল ভেঙে না মানে এমনি করে অনেক ঢুকেছিল আর ঝগড়া কে করেছিল ঝগড়া বললাম তো আমি আর দাদু আর পিপি কেউ মেরেছিল তোর মাকে কেউ মেরেছিল তোর মাকে কেউ মারে নাই ঝগড়া করেছিল কে ঝগড়া করেছিল কথা বার বলি আচ্ছা বলো তুমি আমি ঝগড়া করেছিল দাদু ঝগড়া করেছিল পিপি মেরেছিল ওকে না মারপিট আচ্ছা ঝগড়া করেছিল না পিপি এসে বুঝাচ্ছিল আমাকে দিকে বুঝাচ্ছিল ঝগড়া করছিল এটা বলবি ঠিক আছে তুইও চুপ কর পিপি ঝগড়া করেছিল তার জন্য তুই যে বলার জন্য তুলে দিস না আমার বলে ভাবি বল ঝগড়া হলো দিয়ে ইয়াকে বলতে তুই আমার মা দিন মরণ উঠে তুই আমি না তোর মা মরে গেছে না আমার পিপি আমার টাম্মি আমার পিসু আর আমার পিপি এই 4 জনা মিলে আমার মায়ের সাথে খুব ঝগড়া লেগেছিল সেই জন্যে মা
আমাকে নিয়ে উপরে গেল, দিয়ে মা বললো তুই ছবি আঁক। আমি যখন ছবি আঁকতে বসলাম, তারপরে মা অনেক চাবি নিল, দিয়ে চাবি নিয়ে আলমারিটা খুললো। দিয়ে পরে আলমারিটা খুলে পরে একটা ওড়না আর একটা শাড়ি বার করলো। দিয়ে পরে মা বললো তুই বাথরুমের ভিতরে ঢুক, আমি একটু কাপড় চেঞ্জ করব। আমি যখন বাথরুমের ভিতরে ঢুকলাম, তখন মা বাইরের দিক থেকে বাথরুমের দরজাটা দিয়ে দিল। আর যেই ঘরটাতে ঢুকছিলাম, সেই ঘরটারও দরজাটা দিয়ে দিল। আর এই দরজাটা দিয়ে দিল, আর দিয়ে পরে মা প্যানের মধ্যে সেই ওড়নাটা টাঙ্গা মানে গিট বেঁধে দিল, ফ্যানের সাথে ওড়নাটা দিয়ে গিট বেঁধে পরে নিজের গলায় সেই গিট বাঁধা ওড়নাটা নিয়ে পরে মরে দিল, ঝুলে পড়ে, মানে ধরে ঝুলে পড়ে। মায়ের নাম মামন, আমার নাম সঙ্গীত। মায়ের বাবার নাম স্বর্ণালী, বাবার নাম শুভঙ্কর দাস, আর বাড়ি রানীগঞ্জ সুকান্ত পল্লী। দাদুভাই খুব মারতো মাকে। ঘটনাটা ঘটেছিল আমরা সঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু এরা চূড়ান্ত মানে শ্বশুর, ননদ আর আপনার শাশুড়ি আর একটা পিসি শাশুড়ি থাকতো আপনার এতে মুকুটমণিপুরে। সে বছরে 4 বার 5 বার আসতো, এসে পরে বলতো হ্যাঁ যে বউকে বেশি মাথায় চাপাস না, বউকে বেশি করিস না। হ্যাঁ, দীর্ঘদিন ধরে আমার ভাগ্নির উপরে এরা অত্যাচার করতো। আমার ভাগ্নির ভালো নাম হচ্ছে স্বর্ণালী দাস আর ডাক নাম মামন দাস। 9 বছর বিয়ে হয়েছিল রানীগঞ্জের সুকান্ত পল্লী, অঞ্জনার পাশে, মিনি অঞ্জনার পাশে। যে শুভঙ্কর দাস উনি কিছু করতেন না, অনেক রকমের ব্যবসা করেছেন, ফেলিওর হয়েছেন, বাবের হোটেলে বসে বসে খেতেন। 9 বছর হয়েছে। কালকে এমন কি ঘটনা ঘটেছে আমরা মানে মৃত্যুর পর আমরা খবর পেয়েছি, কিন্তু ঘটনা ঘটতো সেটা আমরা আস্তে আস্তে খবর পেতাম। আমরা অনেক সময় নেগোসিয়েশন করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বিয়ের 1 বছরের মধ্যে থেকে ঝামেলা শুরু। ওই ননদ বাড়ি, বিবাহিত ননদ বাড়িতে থাকলে যেটা হয়, ওই ননদই এসে পরে ঝগড়া করতো। আর পিসি শাশুড়ি বাঁকুড়া মুকুটমণিপুরে থাকে, এ মাঝে মাঝে এসে পরে ঘরে ইন্ধন জোগাতো। ইন্ধন জগিয়ে আমরা খবর পেয়েছি অলরেডি মৃত হবার মানে মারা যাবার পর, মানে আনন্দলোকে ওরা নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু বডিতে কোনো দাগ নেই, কিচ্ছু না। ওনাদের দাবি সুইসাইড করেছে, সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ি নিয়ে। আমরা মনে করছি যে আমাদের মেয়েকে সুইসাইড করেনি, আমাদের মেয়েকে ওরা মেরেছে। আমরা ওদের বাড়ির পরিবারের প্রত্যেকটি যারা মৃত মানে মরার জন্য ইন্ধন জগিয়েছে তাদের আমরা চরম শাস্তি চাইছি, এবং প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ যেন প্রথা অনুযায়ী ওদের চরম শাস্তি হয়। কার মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল আপনার বললাম তো সুকান্ত পল্লী, শিশুবাগান সুকান্ত পল্লী। মেয়েটার বাপের বাড়ি হচ্ছে দেন্দুয়া কল্যাণশ্বরী মাঝে নাগড়াজড়িয়া গ্রাম। আমি মেয়ের মামা। আমার নাম জয়দীপ দাস, ডাক नाम बाबू, बल्लभपुर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आदिवासी समाज इरोली मांझी मापता आता बाईसी समाज की तरफ से रानीगंज के बीडीओ अभिक बैनर्जी को 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज इरेल्दी मांझी माजपा आता बाईसी समाज की तरफ से रानीगंज के बीडीओ अभिक बैनर्जी को 10 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। उनके 10 मांगों में पहली मांग थी कि रानीगंज के रानी सैर मोड़ के पास बने सिद्धू कानू की मूर्ति में घेरा तैयार करना होगा। दूसरी मांग थी कि आदिवासी संप्रदाय के जौहर थान के लिए जमीन का पट्टा देना होगा। उनकी तीसरी मांग थी कि सटीक लोगों ST/SC सर्टिफिकेट देना होगा। स्कूल कॉलेजों में संथाली भाषा को शामिल कर बच्चों को इसकी शिक्षा देनी होगी। आदिवासी इलाकों में कोयले खनन को रोकना होगा। आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं देनी होगी। इन सारी मांगों को आदिवासियों ने रानीगंज बीडीओ के सामने रखा। रानीगंज बीडीओ अभिक बैनर्जी ने 3 महीने के अंदर इन सारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। आदिवासियों का कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। আমরা পান পেয়েছি, আপনারা পান জেলা থেকে পান। হ্যাঁ, অবশ্যই এস্টিমেট করে পাঠাবেন একদম। আপনাদের আগেও যারা তাদেরকেও বলা হয়েছে, তারাও জানে। আপনাদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন বোঝেন।
না না ওইবারও তো আপনি ওই কথাটাই বলেছেন যে আমরা এবার সমস্যা হচ্ছে বললাম আমার থেকে এমপি লাগবে, এখানে আমি আলাদা করে দুয়ার ফর্ম ইউজ করতে পারি, এই অফিস সব করতে বা অফিস রিলেটেড যদি কোনো টাকা আছে ডেভেলপমেন্ট টাকা অফিসটাকে ঠিকঠাক করা এনার যে টাকা পয়সা বাঁচিয়ে যদি করে তুলতে পারে সেটাও এখনো যদি লাস্ট 2 বছরে কোনো টাকা পয়সা আসে লাস্ট 3 বছর আসে লাস্ট যা এসেছিল 2017 সালে ইউপি এই টাকাতে তো নিয়ে আপনি যবেই জয়েন করেছেন সেই প্রথম থেকেই তো চলছে আমাদের, তবে থেকেই আমি পাঠিয়েছি। টাকা যদি না আসে আমার কিন্তু করা থাকে, ঠিক আছে? আমরা বারবারই ডিমান্ড করছি, আর গভর্নমেন্টের যেহেতু এসসি সম্প্রদায়ের প্রতি একটা আলাদা করে আছে, আমরা বারবার ডিমান্ড করছি। আজকে আপনার নেতার সাথেও যেটা বললাম, ইন্দ্রসার সাথে আরেকবার আজকে বলবো তাই অ্যামাউন্ট অফ দিই যাতে এই মূর্তিটা আমরা ঠিকঠাক করে আর বাকি যেগুলো আপনারা দিয়েছেন এগুলোর আপনি স্পেসিফিক্যালি বেশি নয়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 9 अगस्त को ऐतिहासिक भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाते हुए दुर्गापुर महकमा कांग्रेस सेवा दल की ओर से दुर्गापुर के सिटी सेंटर में झंडोत्तोलन किया गया। 9 अगस्त को ऐतिहासिक भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाते हुए दुर्गापुर महकमा कांग्रेस सेवा दल की ओर से दुर्गापुर के सिटी सेंटर में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस के सदस्य तरुण राय, महकमा कांग्रेस सेवा दल के चेयरमैन अमल हलदार, जिला कांग्रेस नेता पूर्णेंदु पांडा, राणा सरकार सहित अन्य नेतागण उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने झंडा तोलन करने के बाद महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता तरुण राय ने कहा कि गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। केंद्र की भाजपा सरकार को हटाने के लिए हम लोग कहते हैं भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। 9 আগস্ট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আমরা সেই বীর শহীদদের আমরা স্মৃতি দর্পণের মাধ্যমে আজকের দিনটি স্মরণ করছি এই কারণে যে 9 আগস্ট গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ তুমি ভারত ছাড়ো এই স্লোগান দিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে নিয়ে উত্তাল করেছিলেন। আর লতা মঙ্গেশকর সে সময় গান গেয়েছিলেন, ও বতন কি লোগো ইয়াদ করো কুরবানি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যেসব মানুষ কুরবানি দিয়েছেন আজকে তাদের স্মরণ করছি। আগের বক্তারা সব কথা বলেছেন। আজকে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে প্রশ্ন একটাই যে আবার ভারতবর্ষকে আবার নতুন করে পরাধীনতার আশপাশে বন্দী হয়ে যাবে, ভারতবর্ষ আবার পরাধীন হবে। আজকে বেশি করে প্রয়োজন জাতীয় কংগ্রেসকে। তাই আজকে 9 আগস্ট প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে এবং 9 আগস্ট ডাক দিতে হবে যে বিজেপি তুমি ভারত ছাড়ো। বিজেপি যদি ভারত না ছাড়ে তাহলে ভারতবর্ষের সংগতি, ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা, বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের সম্মান অটুট থাকবে না। তাই আজকে এই দিনে প্রত্যেকটি কংগ্রেস কর্মীর কাছে আমি আহ্বান জানাবো যে 9 আগস্ট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। আমরা ডাক দিই ভারতবর্ষ থেকে বিজেপি তুমি ভারত ছাড়ো। ধন্যবাদ। जय हिंद, वंदे मातरम। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोविड वैक्सीन में हो रही धांधली को लेकर सोमवार को भाजपा की ओर से दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर भाजपा की एक प्रतिनिधिमंडल टीम ने महकमा शासक को ज्ञापन पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। कोविड वैक्सीन में हो रही धांधली को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल टीम ने महकमा शासक शेख कुमार चौधरी को ज्ञापन पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। धरना प्रदर्शन दुर्गापुर पश्चिम विधायक लखन घुरई और भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री भोला साव के नेतृत्व में किया गया। लखन घुरई ने कहा कि पूरे राज्य में कोविड वैक्सीन का धांधली हो रहा है। राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन की डोज लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। इसके बावजूद भी लोगों को वैक्सीन का डोज मिलना मुश्किल हो गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर माह राज्य को वैक्सीन भेजती है, लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा। राज्य सरकार अब तक डाटा पेश नहीं कर सकी है, कितने लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड डोज लिया है और कितने लोगों ने अब तक एक भी वैक्सीन डोज नहीं लिया। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 अगस्त से मुफ्त में वैक्सीन लोगों को मुहैया कराने की बात कही थी, मगर अब तक यह सुविधा लोगों को प्राप्त नहीं हुई। अनेक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लेने के लिए लोगों को धक्का मुक्की के साथ साथ पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है। दुर्गापुर शहर में साधारण लोगों को आसानी से वैक्सीन नहीं मिल रही, जबकि वार्ड पार्षद के इशारे पर कुछ लोगों को बिना लाइन लगाए वैक्सीन उपलब्ध हो जा रही है। वैक्सीन पर हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए यह सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। शहर के लोगों को जल्द वैक्सीन नहीं मुहैया कराई गई, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन प्रतिदिन शहर के विभिन्न जगहों पर जारी रहेगा। आज के हजार हजार बिजली कर्मी घर छाड़ा, हजार हजार बिजली कर्मी घर জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জেসিবি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন কিছুই করেননি। এখানে মানবাধিকার কমিশন এসছে, এসটি কমিশন এসছে, এসসি কমিশন এসছে, এবং পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কর্মীরা নেতারা ঘর থেকে বেরোতে পারছে না, প্রতিরোধ করতে পারছে না। সেজন্য দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে আজ থেকে 9 থেকে 16 লাগাতার পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আন্দোলন চলবে। আর আজকে আমরা আসানসোল জেলায় আসানসোল কর্পোরেশনের সামনে, সেখানে অগ্নিমিত্রা পাল, অজয় পোদ্দার নেতৃত্বে, এবং দুর্গাপুরে আজকে আমি এখানে বসে আছি, চন্দ্রশেখর ভাই আছে আর নেতারা আমাদের উপস্থিত আছেন, তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ জাল ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলছে। আজকে মূল যে বিষয় আমরা বলতে চাই যে দুর্গাপুর আসানসোলের সমস্ত মানুষ কেন ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, কেন ভ্যাকসিন ব্ল্যাকে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কেন জাল ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভ্যাকসিন পাচ্ছে না। অন্যদিকে কাউন্সিলররা সেখানে বাইরে সই করে দিলে তারা ভ্যাকসিন পাচ্ছেন, অথচ এখানকার সাধারণ মানুষ লাইনের পর লাইন দিয়ে তারা কেন ভ্যাকসিন পাবে না। মোদিজি ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছেন, কত ভ্যাকসিন এই জেলায় এসছে, কত মানুষ পেয়েছে। আমরা মনে করি এই ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, তার কারণ একটা বড় অংশ ভ্যাকসিন ব্ল্যাকে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে আজকে আসানসোল। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सोमवार बांकुड़ा के लाल बाजार से कांग्रेस और वामपंथियों की तरफ से एक रैली निकाली गई, जो पूरे शहर की परिक्रमा कर जिला शासक ऑफिस के सामने पहुंची। सोमवार बांकुड़ा के लाल बाजार से कांग्रेस और वामपंथियों की तरफ से एक रैली निकाली गई, जो पूरे शहर की परिक्रमा कर जिला शासक ऑफिस के सामने पहुंची। इस दौरान वामपंथी और कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने कई वामपंथी और कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार भी किया। हालांकि कुछ देर बाद इन नेताओं को छोड़ दिया गया। वामपंथी और कांग्रेस की तरफ से वैक्सीन सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें मुफ्त में वैक्सीन देने की मांग सहित मनरेगा योजना के तहत 100 दिन के काम को 200 दिन में तब्दील करने की मांग की गई थी। इसके अलावा जिनके पास रहने की छत नहीं, उन्हें घर देने की मांग प्रदर्शनकारियों ने की। আমাদের কর্মসূচি আপনাদেরকে জানাবো। আপনারা যারা আজকে এই এরপরে যে মিটিং কি হচ্ছে তোমাদের কিছু না ওই দিদি সমস্ত বামপন্থী, তার সঙ্গে কংগ্রেস এবং অন্য গণসংগঠন মিলিয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছি, সকলকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমেছি। রেশন এবং 7,500 টাকা নগদ প্রতিটা পরিবারকে দিতে হবে যারা ইনকাম ট্যাক্স দেয় না। আমরা 100 দিনের কাজ নয়, 200 দিন কাজ দিতে হবে, 600 টাকা প্রতিদিন কাজের জন্য মজুরি দিতে হবে। এই দাবি সহ 9 দফা দাবিতে আইন অমান্য করার জন্য এখানে এসেছি। ইতিমধ্যে এখানকার পুলিশ আধিকারিকরা বলেছেন মিছিলে যত মানুষ সবাইকেই আমরা গ্রেপ্তার করলাম এবং মুক্তি দিয়ে দিলাম। আমরা আমাদের বক্তব্য এখন রাখব মানুষের জন্য এবং প্রশাসনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যাতে করে এই সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের জন্য তারা হস্তক্ষেপ করেন। আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আমরা জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও করব। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
करें। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यापारियों की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की हैं। उक्त बातें सोमवार बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण कार्यक्रम के दौरान दिवेंदु भगत ने कही। सहयोग करते हैं जो हमारा आसनसोल कॉर्पोरेशन का जितना सारा आप लोग हैं, आज जो लोग अपने सारा राज्य ये सुविधा लोगों को और ट्रेड लाइसेंस का सुविधा प्राप्त लोगों तक हो सके। आप लोग देखें पिछले साल हमारे सरकार कैंप के द्वारा लोगों को हर चीज का मुहैया कराया है। हमारे सरकार कैंप में हम लोग जो स्वास्थ्य साथी का सुविधा दिए लोगों को, ट्रेड लाइसेंस शुरू करके राशन कार्ड का खाद्य साथी प्रकल्प के दौरान विभिन्न प्रकल्पों का सुविधा प्राप्त और लोग सारे उद्योग में इस तरह के काम करते हैं और इन लोगों ने हम साथ भी देखा। पिछले बार मुझे याद है जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ही कैंप हुआ और इस कैंप का नेतृत्व शिव अग्रवाल जी, शहीद कृष्णा जी, अरुण जी, रामेश्वर जी, सभी का सहयोग और सबसे बड़ा ये यहाँ का व्यवसायिक वर्ग है, उनके पूरा सहयोग। देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से हमारे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आगे की खबरों की ओर जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए,
इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यापारियों की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की हैं। उक्त बातें सोमवार बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण कार्यक्रम के दौरान दिवेंदु भगत ने कही। सहयोग करते हैं जो हमारा आसनसोल कॉर्पोरेशन का जितना ज्यादा हम लोग हैं, आज हम लोग अपने सारा ये सुविधा लोगों को और ट्रेड लाइसेंस का सुविधा प्राप्त लोगों तक हो सके। आप लोग देखें पिछले साल हमारे सरकार कैंप के द्वारा लोगों को हर चीज का मुहैया कराया है। हमारे सरकार कैंप में हम लोग जो स्वास्थ्य साथी का सुविधा दिए लोगों को, ट्रेड लाइसेंस करके राशन कार्ड का खाद्य साथी प्रकल्प के दौरान विभिन्न प्रकल्पों का सुविधा प्राप्त और लोग सारे उद्योग में इस तरह के काम करते हैं और इन लोगों ने हम साथ ही देखा। पिछले बार मुझे याद है जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ही कैंप हुआ और इस कैंप का नेतृत्व शिव अग्रवाल जी, शहीद कृष्णा जी, अरुण जी, रामेश्वर जी, सभी का सहयोग और सबसे बड़ा ये यहाँ का व्यवसायी वर्ग है, उनके पूरा सहयोग। देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से हमारे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केंद्र एवं राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को माकपा एवं सहयोगी संगठनों द्वारा जामुड़िया हरिपुर मुख्य मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक के निकट विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को माकपा एवं सहयोगी संगठनों द्वारा जामुड़िया हरिपुर मुख्य मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक के निकट विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में माकपा संगठनों के CITU, DYFI, SFI, AIADW एवं AIDWEA के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान माकपा के पूर्व सांसद बंशु गोपाल चौधरी ने कहा कि केंद्र में आने के पहले भाजपा ने जनता को भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा केंद्र सरकार में आती है तो सभी चीज़ों के दाम कम होंगे, लेकिन इसका उल्टा हो गया। दाम कम होने के बजाय सभी चीज़ों की दाम प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल एवं डीजल, खाद्य सामग्री और सभी घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण गरीब वर्ग परिवारों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार आने के बाद कोई भी युवक को नौकरी नहीं मिल रही है। पहले जो कारखाने थे आज भी वही हैं, एक भी नए कारखाने नहीं खोले गए। कारखाना खुलने के बजाय कई कारखाने बंद हो गए हैं, जिसके कारण तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। मौके पर तापस कवि, उज्जवल चैटर्जी, सुजीत दत्तो, मोहम्मद नुमान, अशरफ खान आदि मौजूद थे। আমাদের দেশের সরকার বলছে প্রতিরক্ষা দপ্তরে
বিদেশিরা আসবে। আমাদের দেশের মিলিটারিরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে, আমাদের দেশের পুলিশ যে অস্ত্র ব্যবহার করে, তা আমাদের দেশের 41টা কারখানা আছে প্রতিরক্ষার। সেই কারখানাগুলি থেকে যুদ্ধাস্ত্র তৈরি, আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য, দেশ রক্ষার জন্য যে অস্ত্র দাগে দিলেন, তিনি বলেছিলেন যে আত্মনির্ভর ভারত হবে, আমরা ভারতকে আত্মনির্ভর ভারত করব। আত্মনির্ভর ভারত করতে যেয়ে তিনি ভারতকে হাঁটার জন্য তিনি চক্রান্ত করলেন। আমার ভারতবর্ষের সম্পদকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য তিনি চক্রান্ত করলেন এবং নিয়ম যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সাথে সাথে তারা যে সংগতি রেখে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মৃতিকে স্মরণে রেখে তারা আজকে ডাক দিয়েছে भारत बचाओ। आज के भारत का जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।